بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے مسل بھی ٹیشوز ہوتے ہیں جو کہ ہم نے مختلف ٹیشوز پڑھے. بون ہے، کارٹیلیج ہے، اسی طرح مسل بھی ٹیشوز ہوتے ہیں، لیکن یہ اس ٹیشو سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ایک ایبیلٹی ہوتی ہے کنٹریکشن ریلیکسیشن کی. تو اس کو ہم اس لیے اسپیشلائز سیل کہتے ہیں. تو مسل کی تعریف ہم اس طرح کر سکتے ہیں: دا اسپیشلائز ٹیشو which have the ability to contract and relax is called muscle. وہ ٹیشو جو کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کر سکتی ہے یا ایبیلٹی رکھتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسل کہتے ہیں. مسل وائڈلی ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں باڈی میں، مختلف قسم کے مسلز ہوتے ہیں. ہمارے جو ڈائجسٹیو سسٹم ہے، ریسپیریٹری سسٹم ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، اسی طرح جو مختلف سسٹمز ہے یا ایلیمنٹری کینال وغیرہ ہے اس میں مسل پائے جاتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے اسکیلیٹن ہے بونز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. تو ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. مسل کا کام کیا ہے؟ اٹ پرووائڈ موومنٹ آف دا باڈی پارٹ اور ہول باڈی. یہ موومنٹ آف دا باڈی بھی کر سکتی ہے، اور اسی طرح جو ہمارے انٹرنل آرگن ہے، ہارٹ ہے، لنگز ہے، کڈنیز ہے، اس کو اپنی جگہ پہ ہولڈ بھی رکھتی ہے. تو یہ مسل کا کام ہے. اور اسی طرح جو ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں یہ بھی مسل کی وجہ سے ہم کر سکتے ہیں. تو مائیالوجی ایک برانچ ہے سائنس کی. دا اسٹڈی آف مسلس از کالڈ مائیالوجی. اگر ہم سائنس میں مسل کی مطالعہ کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں مائیالوجی. کیا کہتے ہیں؟ مائیالوجی. اور ہم نیوران کی، نیفران کی یا پھر بون کی اسٹرکچر اینڈ فنکشن بھی پڑھے ہیں. اسی طرح سرکومیئر کیا ہے؟ دا اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف اے مسل. مسل کی جو اسٹرکچر اور فنکشنل یونٹ ہے اس کو ہم سرکومیئر کہتے ہیں. آگے ہم دیکھیں گے کہ سرکومیئر کیا ہے اور کس چیز سے بنے ہوتی ہے. تو ٹائپس کیا ہے؟ ٹائپ آف مسل. ہمارے باڈی میں، انسان کے باڈی میں 3 طرح کے مسل پائے جاتے ہیں. نمبر فرسٹ کو ہم کہتے ہیں اسموتھ مسلس. اسموتھ مسل کیا ہے؟ اس کی شکل کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ کہاں پہ واقع ہوتے ہیں؟ دے آر اسپائنڈل شیپ یا اسپنڈل شیپ ہوتے ہیں. اس طرح اس کا سٹرکچر ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سنگل نیوکلیس ہوتا ہے. اس میں نیوکلیس اونلی ون سنگل نیوکلیس ہوتا ہے. اسی طرح انوالنٹری ان ایکشن ہوتے ہیں. انوالنٹری ایکشن کا مطلب ہے کہ اس کی جو فنکشن ہے یہ ہماری مرضی کے بغیر ہوتی ہے. جس طرح ہم خوراک کھاتے ہیں، جب خوراک ایک دفعہ سانس کی نالی میں ایسوفیگس میں چلا جاتا ہے تو اس کو ہم روک نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انوالنٹری ایکشن ہوتے ہیں. اسی طرح نان سٹریٹڈ ہوتے ہیں. اسٹریشن کیا ہوتا ہے؟ اسٹریشن میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اسٹریشن کیا ہے. یہ نان سٹریٹڈ ہوتے ہیں. اس طرح ایک ڈارک بینڈ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ڈارک بینڈ. اور اسی طرح پھر لائٹ بینڈ اور پھر ڈارک بینڈ. پھر اسی طرح ڈارک بینڈ. جب اس طرح سٹرکچر ہوتا ہے لائٹ بینڈ ڈارک بینڈ، لائٹ بینڈ ڈارک بینڈ. جس طرح جمعیت کا جھنڈا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹریشن کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹریشن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسموتھ مسل ہے وہ نان سٹریٹڈ ہوتا ہے. مطلب اس طرح سٹرکچر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ کہاں واقع ہوتے ہیں؟ دے آر وائڈلی ڈسٹریبیوٹیڈ ان ہیومن باڈی. ڈائجسٹیو سسٹم میں ہے، مطلب جو ایسوفیگس ہے، اسی طرح اسٹامک ہے، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن، اس میں اسموتھ مسل پائے جاتے ہیں. اسی طرح ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم میں اسموتھ مسل پائے جاتے ہیں. اسی طرح جو یورینری ٹریکٹ ہے اس میں بھی اسموتھ مسل پائے جاتے ہیں. اور جو ہمارے باڈی میں وینز ہے یا پھر آرٹریز وغیرہ ہے اس بلڈ ویزل میں بھی اسموتھ مسل پائے جاتے ہیں. نمبر سیکنڈ جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کارڈک مسل. کارڈک مسل صرف دل میں پائے جاتے ہیں.
फाउंड इन हार्ट, ये सिर्फ दिल में पाए जाते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, मतलब इस कार्डिक मसल में भी स्ट्रिएशन नहीं होता। इसी तरह ये सिंगल न्यूक्लियस, उसमें भी सिंगल न्यूक्लियस हुआ क्या होता है, ठीक है। और दे आर आल्सो इनवॉलंटरी इन एक्शन, अगर हम चाहे या ना चाहे, हमारा दिल जब तक सांस हो फिर दिल धड़कता है, हम उस धड़कन को रोक नहीं सकते। तो ये किसकी वजह से है, ये कार्डिक मसल की वजह से है, और कार्डिक मसल जो है इनवॉलंटरी इन एक्शन है, हम उसे रोका नहीं सकते। उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। ब्रांच, ये एक सेल है सिंगल न्यूक्लिएटेड है, दूसरा सेल है सिंगल न्यूक्लिएटेड रहता है, और जो दो सेल आपस में अटैच होते हैं उसको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। थर्ड वन हमारे पास है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर थोड़ी मुश्किल है। फॉर एग्जांपल एक डब्बा है, उसके अंदर फिर दूसरा डब्बा है, फिर उसके अंदर तीसरा डब्बा है, फिर उसके अंदर चौथा डब्बा है, इस तरह डब्बे में डब्बा, फिर डब्बे में अगला डब्बा, ये मसल है। अगर हम इसको इस तरह यहाँ से काट ले और उसको देखें तो उसको आप यहाँ पे आपको बंडल नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे, बंडल इस तरह नजर आएंगे। इसको हम मसल बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, मसल बंडल्स, मसल बंडल कहते हैं, ठीक है। अगर हम इस एक बंडल को यहाँ पे, ये एक मसल बंडल है, ठीक है, बहुत सारे बंडल्स होते हैं, तो फिर यहाँ पे हमने एक बंडल को यहाँ पे लिया है। अब इस मसल बंडल के अंदर अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरह में बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं। हमने एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बाहर निकाला और यहाँ हम देखते हैं कि क्या होता है। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं मसल फाइबर। क्या कहते हैं, मसल फाइबर और मसल सेल। जिस तरह आम सेल के साइटोप्लाज्म होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन सिर्फ इसमें एक इजाफा हम करते हैं, दिस इज कॉल्ड मसल सेल या मसल फाइबर। इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, हम सेल मेम्ब्रेन को सिर्फ सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन जो मसल में सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम सार्कोलीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्कोलीमा। और इसी तरह जो साइटोप्लाज्म है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं मसल में। यहाँ पे मसल फाइबर या सेल जो है, यहाँ पे जो फूड वगैरह है वो भी ग्लाइकोजन, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन, वो यहाँ पे स्टोर होता है। अब इस मसल फाइबर के अंदर भी आपको थ्रेड नजर आ रहे हैं। इस थ्रेड को हम एक थ्रेड को निकाल लेते हैं और इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं कि वो किस तरह होता है। यहाँ ये मसल फाइबर है, इसके अंदर दो थ्रेड होते हैं। इस एक फाइबर को हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोफिब्रिल्स, जिसका डायमीटर तकरीबन 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। अब ये मायोफिब्रिल दो चीज़ों से बने होती है, एक ग्रीन है और एक ब्लैक है। एक होता है एक्टिन फिलामेंट और एक होता है मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट जो है वो 3 होता है और जो मायोसिन फिलामेंट है वो 3 फिलामेंट होता है। इसी तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, ये फिलामेंट की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाई है इस तरह। ये डार्क बैंड है, जिस तरह हमने स्ट्रिएशन में बनाया, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड। ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं, ये रीजन जो है डार्क बैंड है और ये रीजन जो है ये लाइट बैंड होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये मैंने बनाया है ए बैंड, जो सिर्फ डार्क रीजन इसमें आते हैं, लेकिन थोड़े से लाइट बैंड के लाइंस भी आते हैं, उसको हम कहते हैं ए बैंड। और सिर्फ जो लाइट कलर है उसको हम कहते हैं आइट बैंड, ठीक है। तो ये तो है, इसको हम कहते हैं ए बैंड, ठीक है। इसके बाद इस ए बैंड में थोड़े से लाइट बैंड के लाइंस भी आए हैं। तो अगर हम इस रीजन को अलग करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसमें डार्क बैंड आ जाए, डार्क बैंड्स आ जाए, तो इसको हम कहते हैं एच जोन। क्या कहते हैं, एज जोन कहते हैं। इस एक एज जोन के दरमियान एक लाइन होता है, बिल्कुल इसके सेंटर में एक लाइन होता है जिसको हम कहते हैं एम
लाइन, क्या कहते हैं, एम लाइन, ठीक है। तो ये तो हुआ ए बैंड। ए बैंड में क्या होता है, ए बैंड में एज जोन सिर्फ जिसमें डार्क बैंड आते हैं, ठीक है। और इसी तरह इस एज जोन के बिल्कुल दरमियान में क्या होता है, एम लाइन होता है। क्या होता है, एम लाइन। ये ए बैंड जो है ये डार्क बैंड होता है। क्या होता है, डार्क बैंड होता है, जो आइसोट्रोपिक होता है। आइसोट्रोपिक का मतलब है कि इससे लाइट पास नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा हमारे पास है आई बैंड। आई बैंड के दरमियान सिर्फ एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं जेड लाइन या जी लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, जी लाइन। आई बैंड, जी लाइन, और ये कौन सा बैंड होता है, लाइट बैंड होता है। ये वाला बैंड जो है लाइट बैंड, ये आई बैंड होता है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि जो एक जेड लाइन से लेकर दूसरे जेड लाइन तक द डिस्टेंस between two Z line is called सर्कोमियर, ठीक है। तो इसको हम सर्कोमियर कहते हैं। तो इससे जाहिर होता है कि जो मायोफिब्रिल है उसमें दो तरह के फिलामेंट पाए जाते हैं, एक एक्टिन फिलामेंट जो 3 होते हैं, एक मायोसिन फिलामेंट जो 3 होता है। डार्क रीजन में क्या होता है, ए बैंड है, और जो लाइट रीजन है वो आई बैंड है। ए बैंड में क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ डार्क रीजन होता है उसको एज जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एज जोन। और उसके जो दरमियान हिस्सा है उसको एम लाइन कहते हैं, और इस आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ जेड लाइन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर है। फंक्शन तो हमने पहले ही पढ़े हैं कि हम जो हमारा दिल जो धड़कता है वो भी मसल की वजह से, हम जो मूवमेंट करते हैं वो भी मसल की वजह से है, हम जो खुराक वगैरह खा सकते हैं वो भी मसल की वजह से है। उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे। थैंक यू।